Namaste friends, welcome back to the School of Learning. I am Neha and starting my second video of the series Preparing for Success. This is my second episode. In the first episode, we already discussed about the self belief, that what is self belief and what is the importance of it. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं. दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू. एंड दिस इज़ द सेकेंड एपिसोड, द सेकेंड स्टेप ऑफ द सीरीज प्रिपेयरिंग फॉर सक्सेस. दैट मीन्स सफलता की सीढ़ी की ये एक कदम, फर्स्ट स्टेप जो कि था सेल्फ बिलीफ यानी कि आत्मविश्वास, वो हमने पूरा कर दिया है. और अब जो दूसरी सीढ़ी है, द सेकेंड स्टेप इज द पावर ऑफ ड्रीम्स. सो इन दिस वी विल टॉक अबाउट ड्रीम्स. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम्स? सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो, आवर एपिसोड. सो स्टे ट्यून्ड और आखिर तक ज़रूर देखिएगा. एंड if you liked it, so like the video and keep watching and keep growing. And मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप पूरा अटेंटिव होकर और विथ फुल फोकस और साथ साथ में अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हुए इस वीडियो को और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनको देखिएगा. क्योंकि my video is not about this just hearing and just for enjoying. My videos are for your improvement, for learning. And learning सबसे पहले खुद से होती है, अंदर से होती है, इंट्रोस्पेक्शन से होती है. द फर्स्ट स्टेप कि आप खुद को जानो. तो अगर खुद को जानना है तो खुद पर बहुत बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत तीखी नज़र, बहुत आपको अपने एक एक स्टेप, अपनी एक एक थॉट प्रोसेसिंग पे आपकी नज़र होनी चाहिए. सो फॉर दैट लेट्स बिगिन आवर वीडियो. आई लर्न माई फ्रेंड्स दैट एवरी यूथ वॉन्ट्स टू बी यूनिक. दैट इज यू. बट द वर्ल्ड अराउंड यू इज doing its best day and night to make you just everybody else. But now the question is whether you wants to be you or everybody else. क्योंकि सबकी तरह बनना आसान है कि नहीं? The challenge therefore, my young friends, that is you have to fight the hardest battle which any human being can never imagine to fight, and never stop until you arrive at your destined place. That is the unique you, and getting the unique you is the biggest battle. And what are the tools for this battle? Not the guns, tanks and all. The tools are dreams, goals, desire, perseverance. So let's talk about the most important tool for this biggest battle. Friends, to succeed in life, you must understand and master three mighty forces: desire, belief and expectations. This says Dr. APJ Abdul Kalam. Let's simplify it. Desire. Desire means how badly you want something. Not just कि अच्छा लगे तो कर लेंगे. Desire is when your dreams become a priority, not an option. If it doesn't disturb your comfort, it is not desire yet. Belief. Belief is trusting yourself even when nothing is working. No results, no support. Still you say, I may be slow, but I am not stopping. That inner voice, that is belief.
Expectation means what you demand from yourself, not from the world, from you. When you expect more from yourself, your actions automatically rise. And then Dr. Kalam says, dreams are not those which you see in your sleep, but dreams are those which don't let you sleep. But to make your dreams come true, you have to be wide awake. Because real dreams make you restless. They ask questions. They don't allow comfort. Here is a simple technique. Just dreaming is not enough. You have to be wide awake. Wide awake means no excuses, no waiting, only action. So, desire starts your journey. Belief keeps you walking. Expectation pushes you daily. And being wide awake turns your dreams into reality. That is the power of dreams. Friends, today we are living in a very special time. आज के इंसान के पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जितनी पूरे मानव इतिहास में पहले कभी नहीं थी. The 21st century is creating experiences जो पिछले 20 centuries में impossible मानी जाती थी. टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ह्यूमन पोटेंशियल को एक्सपोनेंशियली बढ़ा रहे हैं. लेकिन इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम भी इमर्ज हो रही है जो आज के यूथ का असली डिलेमा है, और वो है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ रही हैं लेकिन टाइम अभी भी वही है. दिन अभी भी 24 घंटे का ही है और लाइफ स्पैन भी सीमित है. तो आज का यूथ चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस ले, लर्न करे, ग्रो करे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करे. बट दुनिया जैसे जैसे एक्सपेंसिव होती जा रही है, आज की यूथ को मजबूर होना पड़ता है खुद को बहुत नैरो और स्पेशलाइज्ड डोमेन्स में फिट करने के लिए. और ऑब्वियसली इसकी वजह से उसको बाकी पॉसिबिलिटीज़ को छोड़ना पड़ता है. डॉक्टर कलाम का ये सपना है कि दुनिया के हर यूथ को जितना वो डिज़ायर करता है, जितना वो चाहता है, उससे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंसेस उसको मिलें. बट हाउ इज़ दैट पॉसिबल? वो कहते हैं कि इसके 2 तरीके हैं. पहला है कि इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टाइम, अपने समय को बढ़ाना. समय को बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपको अमर होना है. समय को बढ़ाने का मतलब है कि लॉन्गर, हेल्दियर एंड एक्टिव लाइफ जीना. इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा जीना, बल्कि ज़्यादा सालों तक एनर्जेटिक, कैपेबल और क्यूरियस रहना. एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में भी सीख रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो उसके पास एक्सपीरियंसेस के लिए ज़्यादा टाइम हो गया. और दूसरा तरीका है कि इंक्रीज व्हाट वी कैन अचीव इन द सेम टाइम, कि उसी लिमिटेड टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करें. दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव ऑगमेंटेशन. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, मतलब कि अपने माइंड की कैपेसिटी को बढ़ाना. एग्जाम्पल है कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों के पास ही 24 घंटे ही हैं, लेकिन एक व्यक्ति फोकस्ड है, एक डिस्ट्रक्टेड है. जो फोकस्ड व्यक्ति है वो उसी 24 घंटे में कहीं गुना ज़्यादा सीख लेता है, कहीं गुना ज़्यादा अचीव कर लेता है, कहीं गुना ज़्यादा काम कर लेता है. सो यूथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 2 लाइफ गोल्स क्या है? फर्स्ट, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टाइम, एंड सेकेंड, increase what you can do, what you can achieve in the time available. So the longevity gives you more time, and cognitive augmentation helps you to use that time better. तो अगर आप इन 2 लाइफ गोल्स को समझ लेते हैं
तो बाकी के गेट्स आपके लिए खुद ब खुद खुलने लगते हैं। तो द क्वेश्चन इज नॉट वाई स्ट्रगल, द क्वेश्चन इज हाउ वाइजली आर यू यूजिंग योर टाइम एंड हाउ फार योर माइंड कैन टेक यू। सो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इन 2 लाइफ गोल्स को अचीव कैसे करा जाए। तो इसके लिए डॉक्टर कलाम 2 सजेशंस देते हैं। पहला सजेशन है कि लिव अ सिंपल एंड पायस लाइफ। सिंपल एंड पायस मतलब होता है कि सादगी से भरा हुआ, अनुशासित और सादा और अच्छी आदतों वाला जीवन जीना। एक ऐसी लाइफ जिसमें हम अपने शरीर का, अपने मन का और अपनी आदतों का ध्यान रखें। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अगर हम एक सिंपल और पायस लाइफ जीते हैं ना, तो हम बुढ़ापे तक हेल्दी रहते हैं। और जब हम एक बहुत लंबे टाइम तक हेल्दी रहते हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम होता है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं नई चीज़ें सीखने के लिए और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, कैंसर, डायबिटीज़ एंड जितनी भी ये हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हैं, दैट मीन्स जितनी भी ये लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं और जितनी भी ये एज रिलेटेड डिजीज़ हैं, ये सारी कोई एक दिन में, एक रात में नहीं टपक जाती हैं। इन सारी डिजीज़ेस के बीज हम अपनी यंग एज में ही बो देते हैं। कैसे बोते हैं? अपनी गलत आदतों से, गलत खान पान से, एडिक्शन से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से। तो इसलिए अब हमें ज़रूरत है एक वेलनेस मूवमेंट स्टार्ट करने की। हर युवा को चाहिए कि वो अच्छा खाना खाए, हेल्दी खाना खाए, हेल्दी जीवन जिए और हेल्दी सोचे। हेल्दी सोचना भी बहुत ज़रूरी है एक बेटर मेंटल हेल्थ के लिए। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि तुम्हारी लाइफ अमूल्य तोहफा, एक अमूल्य गिफ्ट है भगवान का दिया हुआ, और दुनिया की कोई भी दौलत इस गिफ्ट की बराबरी नहीं कर सकती है। तो फिर आखिर क्यों इसे सिर्फ एडिक्शंस और बैड हैबिट्स के लिए बर्बाद कर दें? तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छी आदतें अपनाओ, गलत आदतों से दूर रहो और अच्छी एजुकेशंस और स्किल्स हासिल करो। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों का इंतज़ार कर रही हैं जो तैयार हैं और जो काबिल हैं। और दूसरा सजेशन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की शुरुआत होती है अपने पेरेंट्स की केयर से। डॉक्टर कलाम सेज कि इन इस्लाम, आफ्टर बिलीव इन गॉड, द हाईएस्ट प्रायोरिटीज इज लव, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर पेरेंट्स। He also mentioned that Prophet Muhammad says that paradise lies at the feet of the mother. ये सिर्फ कोई रिलीजियस लाइन नहीं है कि ये लाइफ की सच्चाई है। माँ या तो हमें सही संस्कार, सही सोच और सही व्यवहार सिखाकर हमें लाइफ में एक बेहतर इंसान बनाती है, या फिर जब हम पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, तो लाइफ, तो हमारी जो ज़िंदगी होती है वो खुद ब खुद सही दिशा में चलने लगती है। सो फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारियाँ हमें मैच्योर बनाती हैं, हमें ग्राउंडेड बनाती हैं और हमारी लाइफ में सीरियसनेस लाती हैं। फ्रेंड्स, जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरी ज़िंदगी मेरी जिम्मेदारी है और मेरे पेरेंट्स की केयर करना मेरी ड्यूटी, तो उस दिन से धीरे धीरे सारी चीज़ें बदलने लगती हैं। और डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब आप अपने जीवन में
अपने पेरेंट्स के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए जाग जाते हैं, उस दिन से पूरा यूनिवर्स आपके फेवर में काम करना शुरू कर देता है। और ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये वैल्यूज, डिसिप्लिन और इंटेग्रिटी का नेचुरल रिजल्ट है। सो द मैसेज इज सिंपल फ्रेंड्स, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टार्ट विथ योर पेरेंट्स। और फिर देखिए कि कैसे आपकी लाइफ खुद ब खुद आपके फेवर में मूव करने लगती है। लेकिन फ्रेंड्स, मान लो तुम्हारे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम भी है और तुम अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने लगे हो, लेकिन फिर भी सिर्फ ये दोनों चीज़ें ही काफ़ी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आज प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज़ की नहीं है, आज प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की। और कंसिस्टेंसी आती है दो चीज़ों से, फेथ और डिटर्मिनेशन। Dr. Kalam says that faith and determination are the two essential wheels to roll over the opportunities in life. यानी कि जीवन के दो बहुत आवश्यक पहिए जीवन की गाड़ी के, फेथ और डिटर्मिनेशन। इनमें से अगर एक भी कमजोर हुआ तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो फेथ को समझते हैं। फेथ क्या है फ्रेंड्स? हम कभी भी अपने एफर्ट्स के आउटकम को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं होते हैं। यानी कि हमें, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, हमें नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर हम रोज सुबह उठकर उसी काम पे टिके रहते हैं और लगातार मेहनत करते रहते हैं, यही है फेथ। फेथ हमें कमिटेड रखता है। जब हमें रास्ता साफ नहीं दिख रहा होता तब भी हमें कमिटेड रखता है फेथ। फेथ के बिना सपने बस एक विश बनकर रह जाते हैं। डिटर्मिनेशन इज द पावर दैट सीज अस थ्रू ऑल द ऑब्स्टिकल्स एंड फ्रस्ट्रेशंस। लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आना नॉर्मल है, फ्रस्ट्रेशंस आना नॉर्मल है, लेकिन सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ऑब्स्टिकल्स या फ्रस्ट्रेशन आएगा या नहीं। सवाल ये होना चाहिए कि क्या उसके बावजूद भी आप खड़े रहोगे, आप टिके रहोगे उसके सामने। डिटर्मिनेशन वही ताकत है जो फ्रस्ट्रेशंस और ऑब्स्टिकल्स के बाद भी आपसे कहती है कि नहीं, रुकना नहीं है। Determination helps in building our willpower. That is the very basis of success. Willpower बनती है जब आप डिसाइड करते हैं, जब आप बार बार ये डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं से willpower बनती है। Decide that no matter what happens, you will do what you set out to do. मतलब साफ है कि हालात कुछ भी हों, दुनिया बदले या ना बदले, डिस्ट्रक्शंस हो या फ्रस्ट्रेशंस, अगर आप में डिटर्मिनेशन है तो आप टिके रहोगे। अगर आप में फेथ, अगर आपको फेथ है खुद पर और डिटर्मिनेशन है टिके रहने की, तो आप सिर्फ चैलेंजेस का सामना नहीं करोगे, आप दुनिया को बदलने में भी सक्षम हो जाओगे। पेशेंस इज़ द अनदर ग्रेट वर्च्यू। जब भी कोई ऑब्स्टिकल आए लाइफ में, तब हमें पेशेंस प्रैक्टिस करना सीखना चाहिए और हमें डेली बेसिस पर पेशेंस प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि वो हमारी आदत बन जाए। धैर्य और संयम के साथ किसी भी प्रॉब्लम का बहुत अच्छे से हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ज़रूरत है तो बस धैर्य रखने की। जब भी कोई परेशानी आए, शांति से और बिल्कुल कामली, विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन, उसके सॉल्यूशन सर्चिंग एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। और बहुत कामली जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो बहुत आसानी से उसका सॉल्यूशन और उसका बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाता है, विदाउट इसके कि हम परेशान होने लगे। Friends, at last, Dr. Kalam says
that never give up on your dreams. No matter how old you are, no matter where you are today, do not give up dreaming for a better tomorrow. यानी कि एक अच्छे कल का सपना देखने के लिए हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एज कितनी ज़्यादा है या फिर आप अभी कहाँ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन बहुत ज़रूरी ये है कि क्या आप एक बेटर टुमारो, यानी कि क्या आप एक अच्छे कल का सपना देख रहे हैं. अगर आप एक अच्छे कल का सपना देख रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो और वो ये भी कहते हैं कि कोई बाहर से आपको रोशनी नहीं देगा. कभी ये इस चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए कि कोई बाहर से आकर हमारा जो अंदर का अंधेरा है, हमारा जो इग्नोरेंस है, मतलब कि जो अज्ञान है, उसको कोई बाहर से आकर दूर करेगा. कोई रोशनी की लौ बाहर से जलाएगा, उसके बाद हमारे अंदर रोशनी आएगी. कि ऐसा नहीं होना चाहिए. आवर माइंड सेट एंड आवर एटीट्यूड शुड बी कि हमें अपने अंदर एक जो जेंटल फ्लेम होती है, एक जो आग होती है, सबके अंदर होती है, उसको हमेशा जला कर रखना है और अपने अंदर वो रोशनी खुद लानी है हमें. और वो रोशनी आएगी नॉलेज से, ज्ञान से, अंडरस्टैंडिंग से. और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, पेशेंस, परसिस्टेंस, ड्रीमिंग एंड ऑल, तो इन सब चीज़ों से ही वो सारी चीज़ें आएंगी, रोशनी आएगी आपके अंदर. तो बाहर से कोई आके आपको जगाएगा, इसका वेट कभी मत कीजिएगा. स्टार्ट फ्रॉम योर ओन. खुद से शुरुआत करनी है, क्योंकि अगर हम खुद बदलेंगे तभी दुनिया बदलेगी, क्योंकि दुनिया हम ही से बनती है. So thanks for watching friends and keep watching and please जुड़िएगा to the School of Learning से. आपको वीडियो कैसी लगी make sure in the comment section. और अगर कोई suggestions हैं मेरे लिए तो welcome you all for the suggestions. and ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी या नहीं ये भी शेयर कीजिएगा. और अगर मेरे लिए कोई इम्प्रूवमेंट है, सजेशंस हैं, तो वो भी ज़रूर दीजिएगा. सो थैंक यू सो मच.